All right, so good afternoon, guys. Now we are still seeing participants joining in. All right, so I hope Andheri batch 4 and the other batch 2 students are joining this lecture. Right, so we have students from both the places, Andheri as well as Dadar. I hope I'm audible. Am I audible? Okay, great. Check. Thanks, guys. All right, so meanwhile others are joining in. Just a quick recap of what we did in the last class, and you know how we are going to proceed with this online way of learning. So आप लोगों ने लास्ट क्लास में वीडियो लेक्चर देखा था, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखा था, एंड स्टेप ऐप भी खेला था, as well as then you attended the live lecture, and you did some assignment from your booklet as well as did some assignment from the booklet as well. Now that is something which is going to be the common method of going across all the subjects only, that in each live lecture I am going to discuss some doubts and teach you important concepts. Then I will assign you homework from the booklet, as well as give you an indication of how much you can proceed in the step app as well. And then based on the homework that I've given you, I would make those video lectures or video explanations like I did last time, so that जो simple questions है वो आप लोगों के individual basis पे answer हो जाए. We are not spending a lot of collective time of a session in those easy questions as such. So with that approach, we'll be going forward, right? So we have quite a few number of students. How many students were there in the last class, as in last session? What's the total strength of this these two batches combined? Any idea? Around 80 only. No, I'm not asking about the entire batch, but this is around 80. Okay, around 80 to 90. Okay, so then that means we are seeing almost all the students in the session itself. Okay, most of them have joined in this particular session only. Okay, great. So before I start the session, let me talk about two very important aspects. Number one would be your concern regarding doubt discussion of the homework that is done. Okay. Now, as I said, I would be sharing the videos of the homework, the additional homework also that I gave, and the assignment, that optional assignment which I gave. In दोनों का video lecture बना के I'll be sharing with you guys, so that first the basic and the easy part, which maybe you would have made some careless mistake or did some small error here and there, उसकी वजह से आपका answer match नहीं करा होगा, तो all those small things get ironed out, and we are not wasting a lot of collective time on that particularly. Then apart from that, if I feel that certain questions are tricky and they require have some ambiguity and they require some discussion upfront, so I'll take them in these live sessions with me, so that everyone is clear on such ambiguous cases. All right. And then the second point which I wanted to also want everyone to know is the target for the next lecture. जैसे आज के lecture का target आपको पता था कि क्या क्या करके आना है, ठीक है? Next lecture का target is also something which I'm going to share with you, but not in the beginning, but towards the end.
ठीक है, तो आपके अभी तीनों लेक्चर हो जाएंगे एंड रेस्पेक्टिव बैचेस में कितना कितना पढ़ा दिया गया है, कितना कितना डिस्कशन हो गया है, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल बी शेयरिंग व्हाट यू नीड टू नाउ डू एंड प्रेप फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, so this is something how we will proceed, and based on this I'll start the lecture for the day. Now जो homework मैंने आप लोगों को दिया था असाइनमेंट का एंड FBO के एडिशनल क्वेश्चंस का, as I said I will share the lecture links for that, as in video explanations for that. In the meantime, if you require yes, जो FBO में 26 से 40 जो मैंने दिए थे आपको वो वाले, एंड जो असाइनमेंट मैंने आपको भेजा था उसका मैं आपको वीडियो एक्सप्लेनेशंस भेज दूंगा वापस से, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चंस का भेजा था. एंड उनमें से एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा some of you might have been stuck, so I'll just quickly take those couple of questions which I feel are a little tricky one, and उसके बेसिस पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. ठीक है, so let me just take some questions from FBO. All right. FBO का question number, let me start with the question number, where did that go? 29. ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए, बट ध्यान से ऑब्जर्व करना. दिस इज समथिंग जिसके जैसा एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. सो यू हैव बीन गिवन मास ऑफ 2.48 grams of Na2S2O3.5H2 and this is given to you as 2.48 grams. ठीक है, एंड आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकालने हैं. ठीक है, now you know that there is no direct formula for this, so there will be a part of formula that will be used, and then the rest of the part of the will be coming from a simple logic based analysis unitary method. So in order to proceed with the formula based part, we would need the molecular weight or molecular mass of this compound. Now when you will solve for it, right, you will get the answer as 248 gram per mole. So you will get once you do the addition, 2 into 23 plus 2 into 32 plus 3 into 48, and sorry, not 3 into 48, 3 into 16, my bad, oxygen is 16, and then you have water molecules, 5 water molecules and each contributing 18, right? जब आप इसको calculate कर लोगे तो ये 248 आ जाएगा. As a result, you will get moles of Na2S2O3.5H2. right? जो moles आ जाएंगे आपके, you will get it as 2.48 upon 248, which will be 1 by 100. Now, based on this, how will we proceed? Molecules, अच्छा फॉर्मूला से एक और हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं. Molecules of Na2S2O3.5H2, they will be 1 by 100 into Na. You will get the molecules now. Now rest is logic. यहाँ तक आपको जैसा हम लोगों ने solutions में भी डिस्कस किया था, फॉर्मूला हेल्प कर देगा. ठीक है, इसके आगे अब आपको लॉजिक अप्लाई करना है. सो लुक एट दैट लॉजिक. व्हेन यू लुक एट Na2S2O3.5H2O, so in one molecule you can see that there are 5 molecules of H2O. ठीक है, now if you have Na upon 100 molecule, then how many molecules of H2O will you have? You just simply cross multiply and you'll get the answer as Na by 20. अब इस क्वेश्चन में नोटिस करना, अगर मुझे एक्यूरेट आंसर करना है तो 6.02 into 10 की पावर 23 अपॉन 20 करके मैं सॉल्व करूंगा. बट अब इसमें आप ऑप्शन देखोगे तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया है. 6.02 को 6 ही मान लिया है, तो रफली 3 into 10 की पावर 22 आपका आंसर कर दिया है.
सो ये अप्रोक्सीमेशन कई बार क्वेश्चन के ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड रहेगा. So you don't have to worry much about, when do we take approximations, when do we not take approximations. So that is something which is pretty simple. ठीक है. Now, okay, let me talk about see 30th क्वेश्चन में जो परसेंटेज प्योरिटी वाला एस्पेक्ट है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, तो आप लोग ट्राई करोगे. ठीक है. ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्राई अगेन आफ्टर टुडेज लेक्चर. ठीक है. मैं इसमें आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दूंगा. आई टीच सम कॉन्सेप्ट्स एंड उसके बेसिस पे आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा. अच्छा, एक और जो डिबेटेबल क्वेश्चन था इसमें, दैट इज 38. ठीक है. इट इज स्लाइटली controversial in the sense that you have been given atomic weight of a triatomic gas. ठीक है. से triatomic gas मतलब something like ozone. ठीक है. इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं. So atomic weight of a triatomic gas is A. ठीक है. अब generally when we talk about such examples of molecules, ठीक है, ये गैस जो है इसके बारे में नोटिस करना, this it exists as collection of molecules. ठीक है. This implies molecular weight should have been mentioned. ठीक है. अभी द थिंग इज, मान लो जैसे यहाँ पर O3 एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, समझ में आ गया. कल को SO2 एज एन एग्जाम्पल होता ट्राइएटॉमिक गैस का, ये भी तो एक गैस है जिसके अंदर 3 एटम्स हैं, राइट. तो अब इसमें आप एटॉमिक वेट क्या बोलोगे, नहीं पता. कुछ एवरेज करने की कोशिश करोगे, कभी सल्फर का दे दोगे, कभी ऑक्सीजन का दे दोगे, कुछ भी रैंडमली बोलना चाहोगे. तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन to, or a correct statement to give the atomic weight of a substance that exists in form of molecules. ठीक है. So that is something of a defect in the question itself. ठीक है. And you will find that some such questions are going to be there, and a very obvious doubt आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर आपको पता है ये गलत है तो आपने फिर बुकलेट में चेंज क्यों नहीं कराया, मतलब why is it mistake that is there in the booklet. इट इज ऑन पर्पस. प्लीज अंडरस्टैंड, आगे कई जगह कई बार बुकलेट में ऐसी चीजें आएंगी विच माइट ask you to be more curious, more accurate, and it is a part of the learning process. ठीक है. Don't take things for granted. You need to develop that attitude of asking questions, like absorbing information with complete sincerity. ठीक है. Yeah, sometimes even, well, sometimes only. So somebody is asking me questions, can answer in the booklet be wrong? 99% of the cases में नहीं है. ठीक है. 1% cases ऐसे होंगे जहां पर they might be incorrect and would have some either printing error हो गया होगा, ये भी एक कई बार केस होता है, or sometimes there is something to think through the question. Sometimes you might want to really spend time on that question. ठीक है. जैसे somebody is asking FBO के क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एकदम सही है. ठीक है. उसमें कोई गलती नहीं है. तो आपको इन क्वेश्चंस पे ऐसा नहीं है कि वन टाइम ट्राई करा और छोड़ दिया. यू विल हैव टू पुट मल्टीपल टाइम्स एन एफर्ट टू एंश्योर कि हाँ आपको कंप्लीट लर्निंग हो रही है. सो एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस 38th क्वेश्चन, इसमें कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस ट्राई एटॉमिक गैस, ये आपको देना चाहिए था. ठीक है. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस ये आपको देना चाहिए था 3A.
ठीक है, अब इसमें कैसा हो रहा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से रीड कर लेंगे कि चलो एक एटम का ए है तो 3 एटम होंगे अगर मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूलर वेट 3 हो जाएगा, बट वो वर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इज 3 है। अब मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ गैस हैज बीन गिवन टू एज W ग्राम्स, तो दिस मीन्स मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आ जाएगा आपके लिए। दिस इज व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, then okay, there is one question which Deep is asking कि sir there is this question number 5 in the booklet, नहीं 5 था या कौन सा था वो क्वेश्चन, चूज द, हाँ चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, 17th क्वेश्चन इनफैक्ट। तो उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है ना आपको, तो बी ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, बिकॉज सी दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन द 17th क्वेश्चन, दैट इज द करेक्ट आंसर। वो मैंने बुकलेट में जब वीडियो एक्सप्लेनेशन बनाए थे तो आई काइंड ऑफ मेंशन द करेक्ट स्टेटमेंट देयर। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली वो बी को एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि बी इनकरेक्ट है, इसके लिए मैंने वो सी का स्टेटमेंट हाईलाइट करा, बट इट वाज समहाउ कंस्ट्रूड कि यू नो आई एम गिविंग सी एज एन आंसर। सो वो एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन गैप हो गया वहां पर। In that 17th question, it is what is the answer is B option is the incorrect one. ठीक है, then एक और क्वेश्चन में मैंने कहीं पर तो एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर करा था। लाइक स्टूडेंट्स को बहुत मजा आते हैं टीचर्स की गलतियां पॉइंट आउट करने में, सो डू एंजॉय दैट, डोंट वरी। मतलब आई विल हैव माई टर्न एज वेल, यू विल नोटिस जब आपके लिए टेस्ट पेपर बनेगा तो उसमें मेरा भी सैडिस्ट नेचर आपको दिखेगा। I will keep options which I will know how students are going to, or which careless mistakes students are going to make and get those answers. फिर जब आपके नेगेटिव मार्क्स आएंगे then I will have my share of laugh. ठीक है, so don't worry, we'll have this tussle between us. All right, so coming back, आप लोग ठीक है, सो अंडरस्टैंड, आप लोग मुझसे पुराने जो सॉल्यूशंस मैंने भेजे हैं उसमें से जो डाउट्स पूछ रहे हो, दैट इज समथिंग यू नो आई अंडरस्टैंड यू विल हैव डाउट्स। हाउएवर द थिंग इज वो वीडियो एक्सप्लेनेशंस आपको दिए ही गए इसलिए दैट उसमें अगर कोई स्पेसिफिक चीज आपको समझ में नहीं आई है ना, तो यू आस्क दैट टू मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप का चैट। ठीक है, मतलब मुझसे आप अलग से व्हाट्सएप पे पूछ लो कि सर मुझे एफबीओ के क्वेश्चन नंबर 10 में आपने जो सोल्यूशन बताया उसमें ये चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, दैट वे 2 थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, वन आई विल नो कि आपको क्या समझ में आया है क्या नहीं समझ में आया है, एज अ रिजल्ट आई विल बी एबल टू बेटर आंसर योर डाउट इन अ स्पेसिफिक मैनर, क्योंकि मैंने जो जनरल एक्सप्लेनेशन दिया वो शायद आपको क्लिक नहीं करा। ठीक है, सो स्पेंड दैट टाइम ऑन दैट क्वेश्चन एंड आस्क मी स्पेसिफिकली सर वो वीडियो सोल्यूशन में इस क्वेश्चन की ये वाले पार्ट पे मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, मे बी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन हाईलाइट कि ये कैसे आया वो कैसे आया, बट बी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, अब there are some questions which are very simple and which are based on definitions in the booklet, तो आप वो definitions भी read करो। ठीक है, for example Vedant is asking me what is meant by gram atom, तो आपको ये लास्ट क्लास में लिखाया था ग्राम एटम मींस 1 मोल ऑफ एटम। अब मैंने इंग्लिश में बोला, अब हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक की अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। राइट, सो जैसे अभी विनय मुझसे पूछ रहा है सर एफबीओ का क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, सानिध्य भी पूछ रहा है एफबीओ का क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। सो दिस इज वेयर आई वांट योर स्पेसिफिक इनपुट्स कि मुझे, मैंने सर स्पेसिफिक क्वेश्चन में ये पढ़ा और मुझे ये समझ में नहीं आया या मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आया, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, सेंड दैट ऑन द व्हाट्सएप फोरम, send it to me as a question and I'll answer it to my best knowledge. ठीक है, now let's come back to
our topic of discussion today, our theory part. Okay, so this was something जो मैं एक दो questions आप लोगों के साथ में discuss करना चाह रहा था. However, अब जो ये हमारा session है, इसको हम लोग use करेंगे in order to learn newer things rather than being stuck at just one thing and spending a lot of time on it. So we'll start our conceptual learning for the day with something called as ideal gas equation. ठीक है. Now this is something जिसके बारे में let me put a disclaimer up front. Disclaimer or you can say caveat मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Details are to be discussed in gaseous state chapter. ठीक है. जब हम लोग gaseous state chapter पढ़ेंगे तब मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी आपको क्या है एकदम बेसिक चीजों में भी डाउट आएगा. आप बोलोगे सर ये गैस तो हमने सुना था, ये आइडियल गैस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आइडियल, राइट? सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दोस डाउट्स कमिंग फ्रॉम यू, बट राइट नाउ the focus is not to understand the assumptions behind ideal gas, discuss those assumptions, differentiate them with respect to real gas. वो पूरी चीज सब gaseous state chapter में हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे, right? So right now I am not going to spend a lot of time into ideal gas and its explanation. अभी हमें सिर्फ ideal gas का एक equation है जो कि हमें use करना है while solving our questions, तो उसको आप ऑब्जर्व करना हम लोग कैसे यूज करेंगे. सो द इक्वेशन इज PV is equal to nRT. Now this is an equation which talks about the relationship between different parameters of a gas. ठीक है. P represents pressure of gas. ठीक है. कैसा आता है ये प्रेशर? ये वेसल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली मूव करते हुए वॉल्स ऑफ वेसल के साथ में कोलाइड करेंगे, तो उससे फोर्स आएगा एंड उस फोर्स की वजह से प्रेशर आता है. V represents volume of gas. Now इसका टेक्निकल डेफिनेशन होता है वॉल्यूम दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स. तो ये जो कंटेनर का मॉलिक्यूल है, दिस इज समथिंग व्हिच इज अवेलेबल फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल्स फॉर फ्रीली टू मूव. तो इसलिए हम जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है उसी को वॉल्यूम ऑफ गैस बोल देते हैं. N stands for moles of gas, T stands for temperature. ठीक है. Temperature of the system is what is the temperature of the gas also. ठीक है. Now this is something which is the basic that we use. अब इसमें नोटिस करना ये R का टर्म, इस R को हम लोग क्या बोलते हैं? This R is called as gas constant. ठीक है. इट इज कांस्टेंट बिकॉज आप ये इक्वेशन नाइट्रोजन गैस पर अप्लाई करो कि ऑक्सीजन गैस पे अप्लाई करो कि हाइड्रोजन गैस पे अप्लाई करो, सब पे ये जो R का वैल्यू है वो सेम ही यूज करना है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट. हाउएवर यहाँ पे आप नोटिस करना इसका वैल्यू जो रहेगा दैट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ यूनिट्स. ठीक है. हम किन यूनिट्स में सॉल्व करना चाहते हैं उस पे डिपेंड करेगा. तो नोटिस करना देयर विल बी अ सेट ऑफ कॉमन यूनिट्स दैट विल बी वर्किंग विद. ठीक है. एंड समटाइम्स देयर आर SI यूनिट्स दैट वी वर्क विद. सो प्रेशर का कॉमन यूनिट रहेंगे हम लोग ATM. ATM स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. वॉल्यूम का कॉमन यूनिट रहेगा लीटर. ठीक है. मोल्स का कॉमन यूनिट रहेगा मोल. ठीक है. टेम्परेचर का कॉमन यूनिट रहेगा केल्विन. ठीक है. कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको. तो इस केस में R जो कि हमारा गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू रहेगा 0.0821. ठीक है. एंड इसका यूनिट आ जाएगा ATM लीटर पर मोल केल्विन. कैसे आया यूनिट? यहाँ पर आप नोटिस करना आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT है, तो प्रेशर ATM में है, वॉल्यूम लीटर में है, N मोल्स में है
आर का हमको यूनिट्स फाइंड करना है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो आपको समझ में आया कि ये मोल और केल्विन नीचे चले जाएंगे, तो ये यूनिट आर का आ जाएगा एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, अगर आप ठीक है अगर आप यही चीज एसआई यूनिट्स में डिस्कस करोगे, आप प्रेशर लोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी बोलते हैं इसको। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, मोल्स का ऐसा यूनिट है मोल, एंड टेम्परेचर का भी ऐसा यूनिट है केल्विन। तो आर का वैल्यू आपको यूज करना पड़ता है 8.314 न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन, और ये न्यूटन मीटर जो होता है ये वर्क डन का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट रहता है, इसको कहते हैं जूल अपॉन मोल केल्विन। ठीक है, ये वापस कैसे आया यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू आर इंटू मोल इंटू केल्विन। तो आप नोटिस कर रहे हो कि आर कैसा आया, न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन। ठीक है, सो विद दिस you are able to understand that R, which is a gas constant, it is constant for different types of gases, but the value that we have to take depends a lot on the choice of units. ठीक है, that is quite crucial. ठीक है, अभी यहाँ पर आपको इतना ज्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग कैलकुलेशंस नहीं करने वाले हैं ऑफ द यूनिट्स दैट वी हैव। हम लोग इसका एक सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट या सिंप्लीफाइड वर्जन यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए यहाँ पर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट रहेगा तो वो रहेगा मोलर वॉल्यूम का। ठीक है, मोलर वॉल्यूम या समटाइम्स जैसे वी के सबस्क्रिप्ट में एम से डिनोट करते हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, now this is something which we would want to discuss in details. So volume of 1 mole of gas under STP, STP stands for standard temperature and pressure condition. ठीक है, this is what STP stands for. That is what we want to अंडरस्टैंड है। अब नोटिस करना यहाँ पर एक छोटी एम्बिग्विटी क्लियर करना जरूरी है, विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, सो ओल्ड सिस्टम के हिसाब से एसटीपी का मतलब होता था प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 केल्विन। ठीक है, तो अब हम इससे जब सॉल्व करते थे कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो एन डालेंगे 1, प्रेशर डालेंगे 1, आर का वैल्यू क्योंकि हम यहाँ पर एटीएम लीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो ये 0.0821 एंड टेम्परेचर 273.15। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, तो इससे आपका वॉल्यूम का वैल्यू आ जाएगा 22.4 liters. Now this was something which is based on the old convention. ठीक है, old definition of STP. अभी जो नया definition है STP का, ठीक है, उसमें नोटिस करना प्रेशर इज 1 बार। ठीक है, 1 बार मतलब इंटर कन्वर्जन होता है इनके बीच में, 1 बार इज 1 upon 1.01325 atm। ठीक है, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर इज स्टिल 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 केल्विन, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो अब इसमें जब आप कैलकुलेशन करते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का, प्रेशर डालते हो 1 upon 1.01325 फॉर 1 मोल एंड आर का वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर 273.15, तो वॉल्यूम आता है आपका 22.7 liters. So this is as per the new convention. ठीक है, तो ये ओल्ड एंड न्यू समझ में आया। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच एनसीईआरटी आल्सो हाइलाइट्स इन इट्स टेक्स्ट। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। सो अब आप यहाँ पे नोटिस करना
Let me quickly share that NCERT ka screen also with you. Give me 1 second. I'll just share the screen. All right. So यहाँ पर अब आप notice करना that this is the NCERT definition. This is the definition of NCERT, which talks about standard temperature and pressure conditions. Okay. Now, if you look at it, this is the new definition. Temperature 0 degree centigrade and pressure 1 bar. And as a result, when we do the calculation, we get the molar volume. Okay, 1 mole का volume of gas, ideal gas, as 22.7 liters. ठीक है. Now ये notice करना, यहाँ पर इन्होंने star mark करके रखा हुआ है, and star mark में इन्होंने footnote में वही चीज mention करी है. ठीक है. I'm not sure if you are able to see it clearly. थोड़ा सा मैं zoom in करता हूँ. Okay. Okay. So when I do this zoom in, you will be able to read that the previous standard is still often used. What was the previous standard? The previous standard was 0 degree centigrade and 1 atm of pressure. So 1 atm of pressure पर 22.4 liters of volume at STP आता है. ठीक है. तो NCERT ने क्या बता दिया है कि ये नया स्टैंडर्ड है, पर कई जगह आपको ये पुराना स्टैंडर्ड भी यूज होता हुआ दिखेगा. तो अब आपको डेफिनेटली दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग अब क्या करेंगे. ठीक है. हम लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए. हमसे टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग किस तरीके से उसको अब हैंडल करेंगे. तो यहाँ पर नोटिस करना, वी विल बी facing no problems in examinations and उसके questions. Why? Because recent papers आप उठाकर देखोगे, advanced का पेपर देखोगे या फिर मेंस का पेपर देखोगे, तो उन पेपर्स में when you see the questions, तो क्वेश्चन में क्या वो डेटा मेंशन कर देते हैं. ठीक है. दे मेंशन कि भाई 1 atm प्रेशर है और 273 केल्विन टेम्परेचर है और अब आपको कैलकुलेशन करनी है. ठीक है. या वो बोल देंगे 1 बार है. So this is something which has become a part of the standard exams, that they don't go into this ambiguity. They clearly mention the data of pressure and temperature, and based on which you are then required to solve. ठीक है. तो ये तो हो गया एग्जामिनेशंस का, जो कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. ठीक है कि हम क्या करेंगे. अच्छा, अब रहा सवाल पेज की बुकलेट का. पेज की बुकलेट में दिस इज व्हाट इज चोजन. ठीक है. पेज की बुकलेट, वी आर अ बिट ओल्ड स्कूल दैट वे. सो पेज बुकलेट में आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, उन सब में 22.4 लीटर्स, ठीक है, एसटीपी की ओल्ड डेफिनेशन यूज करी हुई है. 1 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. इनफैक्ट पेज की बुकलेट में एसटीपी के साथ साथ एक एनटीपी करके भी वर्ड यूज किया गया है. एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. ठीक है. अब ये जो एनटीपी है, दिस इज समथिंग विच फॉर द बुकलेट इज सेम. ठीक है. सेम इन बुकलेट, दोनों को सेम की तरह ट्रीट करा जा रहा है. ठीक है. हाउएवर यहाँ पर आई वुड वांट टू हाईलाइट वन मोर एस्पेक्ट, दैट एनटीपी is not a recognized term. ठीक है. IUPAC की गोल्ड बुक आप देखोगे, ठीक है, there is this international union which tries to keep all these universal standard and global standards uniform for everyone. इसमें इन्होंने ये NTP का कोई डिस्कशन ही नहीं करा है. ठीक है. They don't recognize it. They recognize STP and they have highlighted कि ये एक old definition होता था और एक new definition है जो कि
आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आपके लिए बुकलेट के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में just go with 22.4 liters and move with problem solving only, ठीक है। don't get into a lot of discussion related to कब क्या करना है, कब कैसे करना है, आपको ये धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग का थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, but believe me this, if you ask seniors who are 1 year senior to you, ठीक है, उनसे पूछोगे तो आपको बोलेंगे कि यार मेरे को भी नहीं पता, तो वो कंफ्यूजन का कंफ्यूजन ही है। बट आप उनसे पूछोगे फिर क्या इसकी वजह से आपके आंसर गलत होते हैं, आपको दिक्कत आती है आंसर को सॉल्व करने में, तो सबका यूनिफॉर्मली आंसर रहेगा कि नहीं, दिक्कत नहीं आती, वो अपने आप समझ में आ जाता है हाउ वी हैव टू प्रोसीड, ठीक है। सो डोंट worry about it, assume NTP and STP so be to be in the booklet 22.4 लीटर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। जेई में कभी आपको क्वेश्चन आएगा, एडवांस में, मेंस में, ये दे विल मेंशन सीधे सीधे प्रेशर टेम्परेचर क्या है, ठीक है। जो प्रेशर टेम्परेचर वो बता देंगे तो उसके हिसाब से आप आंसर निकालते हो, वो बोल देंगे 10 ATM प्रेशर है एंड 30 डिग्री के सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो आप चुपचाप इस इक्वेशन पे आ जाओ, डेटा को डालो, सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस कि हमको डेफिनेशन में कंफ्यूजन है कि नहीं है, ठीक है। नाउ इसके बेसिस पर, ठीक है, लेट मी सॉल्व कपल ऑफ एग्जांपल्स सो दैट again we are on the same page from the problem solving point of view as well. So let me take this FBO ka 36 question. This was something which was a part of the homework, but although I did not explain STP and NTP, you are still able to get the gist of it and will try to solve this question, ठीक है। So मुझे किसी ने डाउट पूछा टेम्परेचर को भी हम ऐसे डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में डालते हैं, इस इक्वेशन में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही जाता है, PV = nRT जो ये इक्वेशन है इसमें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही जाएगा, ठीक है, विदाउट फेल। ओके, नाउ FBO का 36 क्वेश्चन देखते हैं। FBO का 36 क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं एक बार, सो लेट्स वर्क ऑन इट। यू हैव 4.4 grams of CO2 and 2.24 liters of H2 at NTP given to you, and you are being asked total number of molecules कितने होंगे, right? This is the question. अब notice करना, this is something where you will have to be using formula plus लॉजिक। एक्चुअली इसमें लॉजिक ज्यादा काम नहीं आएगा, इसमें फॉर्मूला से ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोटिस करना फॉर्मूला कहां पर था, फॉर्मूला वाज इन दैट टी शेप्ड डायग्राम जो मैंने आपके साथ वीडियो सॉल्यूशंस में डिस्कस भी किया था, ठीक है। यहां पर नोटिस करना देयर वाज मोल्स, देयर वाज मास, ठीक है, मास ये ग्राम्स की यूनिट में रहना चाहिए, देन देयर वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ यू कैन से एटम्स भी होता है डिपेंडिंग अपॉन आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो। एंड ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड वाला ये हम लोगों ने स्किप करा था, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ में, वॉल्यूम एट इन लीटर्स एट एनटीपी, ठीक है, एनटीपी और एसटीपी, ठीक है। अब रिलेशनशिप नोटिस करना कैसे रहेंगे, अगर आपको मास दिया हुआ है तो उससे आप मोल्स निकाल सकते हो, कैसे, you divide by the molecular weight, right? and अगर आपको उल्टा आना है, मोल्स दिए हुए हैं और आपको मास निकालना है तो यू मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच आई एम डूइंग फॉर सब्सटेंसेस
that exist in form of molecules. अभी यहाँ पे CO2 और H2 दोनों ही मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन के फॉर्म में रहेंगे, तो इसके लिए मैं मॉलिक्यूल्स का ही डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉलिकुलर वेट का ही डिस्कशन कर रहा हूँ. सो मास मोल्स का रिलेशनशिप ऐसा रहता है, और फिर मोल्स आ गए तो उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, यू मल्टीप्लाइड बाय Na, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मोल्स निकालने हैं तो यू डिवाइडेड बाय Na. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने लास्ट क्लास के वीडियो सॉल्यूशन सब देखे होंगे तो उनसे सीखा होगा, राइट, दैट दिस वाज समथिंग which helped solve a lot of questions, and this is something which is applicable for all. ठीक है, it is applicable for solid, liquid, gas, ये सब के लिए applicable है, and ये सब टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के लिए भी चलेगा. ठीक है. अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट ऑब्जर्व करना. राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो रहेगा, दिस मीन्स दिस जो अभी हमने जस्ट सीखा है मोल्स एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप. ठीक है, तो इसमें नोटिस करना, मोल्स अगर आपको पता पड़ गए तो आप वॉल्यूम कैसे बताओगे, यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स बाय 22.4, क्योंकि अभी आपने ऊपर नोटिस करा कि एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज कर रहा है. ठीक है, एट एनटीपी. अगर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा तो आप उसको डिवाइड कर देना 22.4 से, तो आपको मोल्स मिल जाएंगे. ठीक है. अब इसके साथ में नोटिस करना दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, एंड दैट टू इन एनटीपी और एसटीपी कंडीशंस. ठीक है. इन्हीं कंडीशंस पे ये आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है, रैंडमली कहीं पे भी मत लगा देना. राइट, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. आपको पहले CO2 का डिस्कशन करना है. CO2 के बारे में क्या दिया हुआ है. ठीक है, मास इज गिवन टू अस 4.4 ग्राम्स. मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है कि 44 ग्राम पर मोल होता है CO2 का. ठीक है, क्विक कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए ये. अभी ऐसा नहीं कि स्पीड आपकी स्लो चल रही है, मैं आपको बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 निकालो और आप बैठ के काउंटिंग कर रहे हो. मतलब प्लीज, अगर उतना बेसिक मैथ्स आप फास्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इससे आपको मोल्स आ जाएंगे. मोल्स विल कम आउट टू बी 4.4 अपॉन 44 व्हिच इज 1/10. तो अब इससे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो. मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, जो मोल्स आ गए उनको आपने Na से मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, अभी H2 के लिए बात करते हैं. H2 के लिए आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम एट एनटीपी दिया हुआ है which is 2.24 लीटर्स. ठीक है, तो अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और ये गैस भी है और एनटीपी पर भी है, तो आप ये रिलेशनशिप अप्लाई करके मोल्स निकाल दो. यू डिवाइडेड बाय 22.4, so you'll get moles. So you'll get moles is equal to 2.24 upon 22.4 which comes out to be 1/10 only. तो अब आपके पास मोल्स आ गए. अब आप मोल से मॉलिक्यूल्स भी निकाल लो, just multiplied by Na. So you will get number of molecules of H2 will be also equal to Na/10. नाउ टोटल मॉलिक्यूल्स अगर आपसे पूछा है तो आप सिंपली इनको ऐड कर दो एंड योर आंसर विल बी Na/5. दैट्स योर आंसर. ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज द 36th क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हिच you will be able to get your answer. ठीक है. अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना चाहोगे. Okay, so let me introduce one slightly difficult question, is understanding per based. ठीक है, so here you go. The question is, you have 53 grams mixture of methane and ethane. ठीक है, 53
grams mixture of मीथेन एंड इथेन। ठीक है, इंडिविजुअली कितना मास है हमें नहीं पता, हमें मिक्सचर का मास दिया हुआ है बस। 53 grams of mixture of methane and ethane is found to occupy 44.8 liters of volume at NTP। ठीक है, NTP या STP। ठीक है, सो अब आपको डिस्कस करना है और आंसर बताना है दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस सैंपल। ठीक है, now before you start solving for it there is an important point that I would want you to remember। ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था that 1 mole of gas, अभी ऊपर स्टेटमेंट लिखा था, occupies 22.4 liters at STP। ठीक है, the thing is that this statement is applicable for different types of gases also। मतलब हाइड्रोजन के लिए भी एप्लीकेबल है, नाइट्रोजन के लिए भी एप्लीकेबल है, मीथेन के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैस एज वेल। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैस एज वेल। ठीक है, सो विद दिस हिंट let me know what answers you are getting। राइट, अक्षय का आंसर सही है। नहीं, वैभव, अर्शद, वेदांश, हर्ष, नहीं, आपके आंसर सही नहीं है। these are not the correct answers। and जल्दी आंसर दे रहे हो बट ऐसी हड़बड़ी नहीं है, आपको एग्जाम में गलत आंसर नहीं देना है। ठीक है, जल्दी और सही के बीच में सही को चूज करना है। टेन is also not the correct answer। 5.4 Na is not correct answer। see you will have to be thorough। आप लिख लिख के करो ना, आप हवा में क्यों कर रहे हो? डोंट डू योर क्वेश्चंस ऐसे कि भाई मैं तो जीनियस हूँ, वैसे तो हवा में हो जाएगा। आप पेन चलाओ, जितना पेन चलाओगे उतना ही आपको और समझ में आएगा। All right, so the correct answer is actually 3.5 Na। so कैसे सॉल्व करेंगे उसको, अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना। मोस्ट ऑफ यू have not been able to get the correct answer, so you might have made certain mistakes। so realize करना what are the mistakes that you are making। ठीक है, so understand। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं इसका। अब ध्यान से देखना, मुझसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। ठीक है, कुछ कुछ डेटा दे दिया है ऊपर में, मैं समझ गया। मीथेन का मिक्सचर है इथेन के साथ में, और मास दिया हुआ है, उनका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, बट पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इथेन पता होते तो मैं इजीली आंसर दे देता। ठीक है, इफ आई वुड हैव नोन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। सो नोटिस यहाँ पर हाउ वी विल प्रोसीड। ठीक है, हाउ वी विल प्रोसीड हेयर विद नंबर ऑफ मोल्स कोई हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल मानने में आप ऐसे कंजूसी मत करना। अगर आपको वेरिएबल मानना है, कुछ अननोन है,
तो आप मान लो ना आपके लिए वो एक स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप देखना या तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा या सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स आर हेजिटेंट, दे आर जस्ट ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूटिंग डेटा इन दैट फॉर्मूला। हर बार ऐसा नहीं होता है, हर क्वेश्चन वैसा नहीं बनेगा। तो आपका एक अप्रोच डेवलप करने का आपका तरीका यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। सो लेट द मोल्स ऑफ CH4 be A, ठीक है, एंड लेट द मोल्स ऑफ C2H6 be equal to B, ठीक है। अब मुझे अगर किसी तरीके से A और B मिल जाएगा तो मैं मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर भी कमेंट कर सकता हूँ, राइट। कैसा रहेगा यहाँ पर आप नोटिस करना, यूनिटरी मेथड से समझ में आएगा। अगर 1 मोल CH4 होगा तो उसमें 1 मोल कार्बन आएगा, अगर A मोल होगा तो उसमें कितना मोल कार्बन आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका A मोल कार्बन आइटम आएगा। वैसे ही अगर C2H6 के बारे में बात करूंगा तो उसके 1 मोल में 2 मोल कार्बन आइटम आ रहा है, दिख रहा है आपको, फॉर्मूला से दिख रहा है। तो अगर इसके B मोल है तो कितना मोल कार्बन आइटम आएगा C2H6 में। तो वापस यू विल अप्लाई द यूनिटरी मेथड एंड यू विल गेट द आंसर एज 2B मोल्स, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल मोल्स ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू A प्लस 2B, ठीक है। अब हमें A और B के लिए सॉल्व करना है, आंसर तो हमारा बस सब्स्टिट्यूट करने पर आ ही जाएगा, राइट। सो सॉल्व फॉर 2 वेरिएबल्स जो हमने लिखा है बाय फॉर्मिंग 2 इक्वेशंस, ठीक है। अब ये 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। अब इसके लिए हम क्वेश्चन को वापस से देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या डेटा पॉइंट है। सो पहला डेटा पॉइंट हमारे पास में है दैट वी हैव 53 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। सो ओके, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ CH4 प्लस मास ऑफ C2H6। अब मास मोल का रिलेशनशिप स्ट्राइक करेगा आपको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CH4 into molecular weight of CH4 plus moles of C2H6 into molecular weight of C2H6। तो ये थे A मोल्स, इसका मोलिकुलर वेट 16 है, इसके B मोल्स है, उसका मोलिकुलर वेट 30 है, और ये आपको 53 ग्राम्स दिया हुआ है। तो ये आपका पहला इक्वेशन तैयार है, ठीक है। अभी एक और इक्वेशन की जरूरत है, तो देखें क्वेश्चन में और कुछ डेटा भी दिया हुआ है क्या। Do you notice any other data that is being given in the question? Right, so when you will see that, you will find कि हाँ एक 44.8 liters of volume at STP का भी डेटा दिया हुआ है। So then based on it, you are like okay, we can use it to form another equation. So notice करना 44.8 liters of gas mix, ठीक है, implies how many moles, ठीक है। if 22.4 liters of gas मिक्सचर के लिए भी एप्लीकेबल है, is implying 1 mole, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको पता ही है, ठीक है, एसटीपी के ऊपर। तो अब आप वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट दैट दिस इज 2, ठीक है। दिस आर द टोटल मोल्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, A प्लस बी के बराबर। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, दैट A प्लस बी इज 2। तो अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इजी टू सॉल्व। सो आप सॉल्व करोगे, सॉल्व 1 and 2 यूजिंग whatever technique that fits, आपका आंसर आ जाएगा A हाफ है एंड B 3/2 है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज टोटल मोल्स ऑफ कार्बन आइटम कितने हो गए। टोटल मोल्स ऑफ कार्बन आइटम मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया था कैसे लिखना है, इट विल बी A प्लस 2B। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
it will be A plus 2B, so it will be half plus 2 into 3 by 2, so you'll get your answer as 3.5 moles. बट ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। अब आप नोटिस करना कि मैं ये एक ऑप्शन डाल दूंगा और आप में से कुछ लोग ये मार्क भी करके आ जाओगे और फिर नेगेटिव मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। दिस इज सेडिस्ट मी, क्योंकि मैंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये हो जाएगा 3.5 Na. दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग यू विल लर्न विद टाइम, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू मैच कर जाती है आपके सॉल्विंग में, तो इतना ऐसा यूफोरिया होता है ना, मतलब सॉल्व करने की खुशी इतनी होती है कि आप भूल ही जाते हो कि एक्चुअली में कुछ केयरलेस मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो और आप फटाफट फटाफट मार्क करते हो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू विल हैव टू डेवलप ओवर टाइम, हाउ टू अवॉइड these केयरलेस मिस्टेक्स। वी विल टीच यू, डोंट वरी, बट वी विल टीच यू द हार्ड वे, ऐसा नहीं, ठीक है। सो I hope this question is clear with everyone. हाँ, हम लोग और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज समथिंग जहां पर वी वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एनटीपी, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन फ्रॉम द गैसेस वाला पार्ट, ठीक है, बिफोर आई मूव ऑन टू अदर सब टॉपिक, मैं गैसेस में एक और छोटे से सब टॉपिक का नाम लिखना चाह रहा हूँ। Okay, so I'm getting a question that what is this concept called as? What concept are you talking about? I did not get you. Do you want me to unmute you and then you tell me? हाँ हाँ, आपको होमवर्क में और क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। लेट मी रिपीट द पार्ट वेयर आई गॉट A plus 2B. ये लॉजिक बेस्ड था। यहाँ पे देखो, अगर मैंने CH4 का फॉर्मूला देखा तो उसमें एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है ना, तो A मोल्स में A मोल्स कार्बन रहेंगे। C2H6 में एक मॉलिक्यूल में दो कार्बन है, तो अगर B मोल्स लूंगा तो उसमें दो टाइम्स B 2B कार्बन के एटम्स होंगे, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। दिस इज हाउ यू गेट द कॉन्सेप्ट, ओके, ऑल राइट। नाउ एज आई सेड कि एक और छोटा सा क्विक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक। तो एक और यहाँ पे देखना, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी VD ऑफ गैस, ठीक है। नाउ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस में हाउ विल वी प्रोसीड, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। अब इसका डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन कैसा होता है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, ठीक है। एंड दिस इज measured, like both the density के measurements numerator and denominator they happen at same temperature and pressure conditions, ठीक है। ये definition है इसका। अब नोटिस करना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन में कैसा रहता है, PV इज इक्वल टू nRT रहता है। अब n जो रहते हैं मोल्स, उनको मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा इसको रीशफल कर देते हैं, वॉल्यूम को राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट को लेफ्ट हैंड साइड, सो ये प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट
is mass upon volume into RT, and ये mass upon volume क्या होता है? This is what we call as density. ठीक है? So this is P into molecular weight is equal to density into RT, or you can say that this density is equal to P into molecular weight upon RT. ठीक है? तो ये एक डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला बन गया. ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस. अब आप नोटिस करना, इसको आई सब्स्टिट्यूट इन द वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला. सब्स्टिट्यूट इन फॉर्मूला, और यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी. तो ये क्या था? वेपर डेंसिटी वाज डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस. तो ये डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? P इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन RT डिवाइडेड बाय रेफरेंस गैस के लिए भी यही लिख सकता हूँ, P इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस अपॉन RT, राइट. एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर ये सब सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर है. ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं प्रेशर और टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट सबको कट कर दूंगा. तो मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या बन गया? वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस. ठीक है, ये समझ में आया? अब नोटिस करना, टिपिकली ये जो रेफरेंस गैस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन रहता है. तो इसके लिए डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा. ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ बोलेंगे नहीं तो टिपिकली रेफरेंस गैस इज H2, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए अब काम आएगा. अब आपको नोटिस करना, जब आप चैप्टर में आगे जाओगे तो ऐसा इस पर स्टैंड अलोन क्वेश्चन तो नहीं आएगा. ठीक है, बट यू आर going to see this as part of questions. ठीक है, there will be questions जहां पर this will be incorporated as a part of the overall question. अलग से इस पर question मुश्किल है. ठीक है, all right. So these are the two important concepts about gases जो कि इस chapter के लिए sufficient है. ठीक है, फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट, एज आई सेड, आइडियल गैस क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, वो सारी डिटेल हम लोग गैसियस स्टेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी के लिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दोज डिटेल्स. इस चैप्टर में जितना रिक्वायर्ड था आपके लिए उतना मैंने जस्ट आपको बता दिया कि आप इतने पार्ट के साथ में इजीली वर्क कर सकते हैं. ठीक है, राइट. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर as part of the homework that I'm going to give you. Now I want to move on to the next concept, and उस concept के ऊपर हम लोग थोड़े से tricky questions करेंगे. ठीक है, now when I'm going to take this next concept, so ध्यान से observe करना. I would request you to let me complete the explanation with examples. ठीक है, एग्जाम्पल्स लूंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सो लेट्स कम टू दैट कॉन्सेप्ट. इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी वांट टू डिस्कस. ठीक है, now the discussion of this concept is also there in the video lecture which you might have seen, the pre-recorded video lectures जो आपके साथ शेयर किया गया है. पर उसको मैं आप थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं हो. सो नोटिस करना, when we talk about this concept of percentage composition, it has 2 parts to it. ठीक है, there is percentage by mass and there is percentage by moles. ठीक है,
और ऑल्सो कॉल्ड एज परसेंटेज बाय नंबर, ठीक है, परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय मोल्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब पहली बात तो नोटिस करना, एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। देखो आइडियली जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा in which you would want to kind of you would want to solve for the data, एंड आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन का डेटा दिया हुआ होगा, तो जो आइडियल क्वेश्चन होता है, जो टेक्निकली करेक्ट क्वेश्चन होता है, उसके अंदर डेफिनेटली आपको मेंशन करके मिलना चाहिए कि जो डेटा दिया गया है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, वो बाय मास है कि बाय मोल्स है, ठीक है। A technically correct question should always mention this. However, the practical aspect is that everyone is in rush. You are also in rush, I am also in rush, and I have then noticed that even in exams, ठीक है, बुक्स बुकलेट ये सब तो छोड़ो, एग्जाम्स में भी कई बार दे काइंड ऑफ स्किप द पार्ट टू डिस्क्राइब कि परसेंटेज बाय मास दिया है कि परसेंटेज बाय मोल्स दिया है, एंड एज अ रिजल्ट आपको फिर भी आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ता है, ठीक है। सो कैसे उस क्वेश्चन को अब आप डील करोगे, तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग यहाँ पे अब्सॉर्ब करना। ये परसेंटेज बाय मास टिपिकली कहाँ पर यूज होता है, कि टिपिकली यूज्ड व्हेन परसेंटेज composition of an element in a compound is given, ठीक है। कि ऐसा बोल देते ना कि से अमोनिया में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है बाय मास, तो वो क्या होगा, अगर मेंशन नहीं करा होगा ना तो टिपिकली वो बाय मास ही होगा, ठीक है। या फिर एक और नोटिस करना आप यहाँ पर कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, जब परसेंटेज प्योरिटी का डिस्कशन हो रहा होता है तब भी परसेंटेज बाय मास ही पूछा जाता है, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है कि हमने एक ओर निकाला और उस ओर का प्योरिटी है 0.1%, तो दैट 0.1% विल बी अ परसेंटेज बाय मास, ठीक है। So this is something which you pick as you go when you solve many questions. So this is something which I'm helping you identify upfront, क्योंकि आप जब बुक्स सॉल्व करोगे, बुकलेट से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन में डेटा दिया है बट वो डेटा परसेंटेज बाय मास है, परसेंटेज बाय मोल्स है, वो पता नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये नोटिस करना बाय मोल्स कहाँ पर होगा टिपिकली, ठीक है। सो दिस इज टिपिकली यूज्ड when percentage composition of gaseous mixture, ठीक है, गैसेस के मिक्सचर के बारे में बात करा जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है एयर में 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, तो ये डिस्कशन टिपिकली मोल्स के टर्म्स में होता है, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच गोज एज कॉम्पोजिशन बाय मोल्स, ठीक है। या फिर आप नोटिस करोगे जब आइसोटोप्स का कॉम्पोजिशन बताया जा रहा होगा, सो आइसोटोप्स के कॉम्पोजिशन में भी दिस इज समथिंग विच इज यूज्ड। आइसोटोप्स के कॉम्पोजिशन में ऐसा है ना, जैसे क्लोरीन के दो कॉमन आइसोटोप्स हैं, एक Cl35 और एक Cl37। सो हाउ इट गोज इज दैट Cl35 is 75% and Cl37 is 25%. अब ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, दिस इज समथिंग विच इज based on percentage by moles, okay. So this is something important for you to understand. अब
इसके ऊपर और डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको जब मैं एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है। तो आप एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। एग्जांपल के पहले मैं एक बार क्विकली इनका कैलकुलेशन भी समझा देता हूँ, ठीक है। इनका कैलकुलेशन कैसे करा जाता है। सो अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है और उसमें आपको परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट पूछा जा रहा है इन से कंपाउंड, तो आप कैसे लिखोगे? यू विल राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट in molecular weight upon molecular weight of compound into 100%, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट विद सम मोर एग्जांपल्स, बट दिस इज हाउ यू राइट द परसेंटेज कैलकुलेशन बाय मास, ठीक है। लेट मी टेक एग्जांपल। सो लेट्स से हम लोग परसेंटेज बाय मास का डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें let me kind of make this a little more here, ठीक है। परसेंटेज बाय मास डिस्कशन करना चाह रहे हैं एंड यू हैव से CO2 एज द एग्जांपल, ठीक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या से H2O एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। इनमें मुझे आपसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछना है, ठीक है। तो वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम लोग कैसे लिखेंगे वो आप यहाँ पे नोटिस करना। अभी फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था? CO2 में लेट्स से मुझे लिखना है, तो CO2 में व्हाट विल बी द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन। तो आप पहले देखोगे कि डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड आएगा, तो वो लिख लो, दैट इज 44। अब न्यूमरेटर में कार्बन ने कितना कंट्रीब्यूट करा है इस 44 में, वो लिखो। सो कार्बन का कंट्रीब्यूशन इज, एक आइटम है कार्बन का एंड उसका 12 कंट्रीब्यूशन है, so this multiplied by 100 gives you the percentage of carbon का contribution, ठीक है। हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसमें। ऑक्सीजन के बारे में देखो, ऑक्सीजन का कैसा रहेगा वापस से, डिनोमिनेटर में तो मॉलिक्यूलर वेट, because that is a calculation methodology that you have molecular weight of compound in the denominator, एंड इसमें ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, ईच हैविंग एन एटॉमिक मास ऑफ 16। सो ये आपका ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन हो गया बाय मास। ये समझ में आया? ठीक है। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, H2O का एग्जांपल ले लेते हैं। H2O के एग्जांपल में नोटिस करना, कार्बन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 2 एटम्स है, एक एक एटॉमिक मास है और ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट 18 है। तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और दिस इज द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय मास। ऑक्सीजन का कितना रहेगा, एक एटम है जिसका 16 मास है, ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट 18 है, इनटू 100%। ये समझ में आया किस तरीके से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास निकाल रहे हैं? ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब परसेंटेज बाय मोल्स भी देख लेना, परसेंटेज बाय मोल्स कैसा रहेगा। सो यही एग्जांपल देते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, ठीक है, और यही कंपाउंड्स लूंगा, ठीक है। पहले एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन इसका कैसा रहेगा, यहाँ पे परसेंटेज बाय मोल्स, ठीक है, और परसेंटेज बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे नोटिस करना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट अपॉन
ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर वो एलिमेंट के कितने एटम्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 100% विल गिव यू द बाय मोल्स। जैसे CO2 हो गया, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे CO2 में टोटल 3 एटम्स हैं, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, उसमें से अब आप कार्बन का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कार्बन का एक एटम है आउट ऑफ 3, तो इट इज बाय नंबर या बाय मोल 1/3 हो गया। हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं आउट ऑफ 3, सो ये 2/3 हो गया, 2/3 इंटू 100%। H2O में देखोगे कार्बन तो है नहीं, खैर H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम्स है आउट ऑफ द 3 एटम्स इन टोटल, तो ये 2/3 इंटू 100% एंड ऑक्सीजन 1/3 इंटू 100%, ठीक है, तो ये बाय मोल्स हो गया, राइट। आई होप इन एग्जांपल्स आपको ये समझ में आया है, ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है so I would be more than happy to get the answers from you for one more question. So say you have H2C2O4 dot 2H2O, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इसमें आप मुझे ये कैलकुलेशन बताओ, परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ द 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कैलकुलेट करके बताओ। एंड यू कैन गिव द आंसर्स इन फ्रैक्शन ऑल्सो। अब सर डेसिमल में लेकर जाने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, जस्ट यू कैन रिपोर्ट द फ्रैक्शंस ऑल्सो। पहले परसेंटेज बाय मास पे वर्कआउट करो। नहीं नहीं, आपके आंसर्स सही नहीं आ रहे हैं। तो पहले तो आप मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ ना। इसका अपन ने मॉलिक्यूलर वेट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दिस वाज 126, राइट, मैंने आपको बोला था। ओके, अब यहाँ पे अब आप नोटिस करना एंड अपना आंसर मैच करने की कोशिश करना। सो कार्बन का कितना आ जाएगा यहाँ पर, कार्बन हैज 2 एटम्स एंड उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 into 12, दैट इज 24, सो दैट डिवाइड बाय 126 into 100%। हाइड्रोजन का कितना रहेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन के आप नोटिस करना 2 + 2 into 2, ठीक है, टोटल 6 एटम्स हो गए, तो 6 एंड ईच कंट्रीब्यूट्स 1 in the molecular weight, तो 6/126 into 100%। ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे, ऑक्सीजन के लिए कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 4 + 2, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर and each contributing 16 in the molecular weight of 126, so this is your answer of percentage by mass of oxygen। ये समझ में आया, ठीक है, आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज प्रीटी क्लियर। नाउ बाय नंबर देखोगे तो इसमें आपने नोटिस करा कि टोटल 14 एटम्स हैं,
ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी जो हम बोलते हैं, एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन, तो ये तो 8 हो गए। और फिर आप नोटिस करोगे 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन एंड 2 इंटू 1 2 और ऑक्सीजन, तो ये 8 प्लस 4 प्लस 2 14 एटम्स हो गए टोटल। तो कार्बन का परसेंटेज बाय मोल्स कितना हो गया, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 2/14 इंटू 100%, हाइड्रोजन का 6/14 इंटू 100% एंड ऑक्सीजन का भी 6/14 इंटू 100%। सो दिस इज द परसेंटेज बाय मोल्स और परसेंटेज बाय नंबर। ठीक है, ऑल राइट, नाउ विद दिस इन माइंड, अब आप एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से इसी में अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूँ, परसेंटेज composition of water, percentage composition of water H2O in H2C2O4.2H2O। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ मुझे। अब देखो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, सर बाय मास की बाय मोल। ठीक है, एंड ये नोटिस करो, ये येलो में जो लिखा है यहाँ पर, मतलब ऑरेंज में एक्चुअली, आपके सामने कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर लिखा नहीं होगा बाय मास की बाय मोल्स। तो इसमें कैसे करना पड़ेगा अब आपको, परसेंटेज बाय मास ही लिखना है। ठीक है, सो यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द आंसर इज राइट। सो यहाँ पर परसेंटेज H2O will be contribution of H2O in molecular weight upon molecular weight into 100%। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के और ईच मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट्स 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, all right, great, a lot of you have been able to get the answer right. Okay, now let me try to increase the level of difficulty in these questions. ठीक है, so let's take a quick recap of the percentage by composition, as in percentage composition by mass का फॉर्मूला जो है, so उसका एक क्विक डिस्क्रिप्शन देखना। percentage by mass of element in compound is equal to contribution, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, contribution of element in molecular weight upon molecular weight of compound into 100%। ठीक है, अब इसमें नोटिस करना आप लोग 1 2 3, ये 3 डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कैसा रहेगा, आउट ऑफ दीज 3 डेटा पॉइंट्स, ठीक है, सम will be given and remaining would be asked। ठीक है, इस अप्रोच के ऊपर एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अभी। सो लेट मी ब्रिंग इन द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज प्रीटी straightforward, just if you understand it conceptually। ठीक है,
So a compound of molecular weight 168 gram per mole is found to contain 100 by 3, 33.33% nitrogen. ठीक है, when I say nitrogen I just mean the element. ठीक है, nitrogen gas मत ले लेना. So determine the number of nitrogen atoms per molecule of the compound. राइट, वेदांश का आंसर सही आया है, स्वर का भी सही है, चैतन्य का भी सही है, हर्ष आपका सही नहीं है, ऋषि आपका सही नहीं है, अथर्व थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, Na क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने तो पर मॉलिक्यूल पूछा है ना, पर मोल थोड़ी ना पूछा है। नहीं नहीं, ये 5600 तो गलत है, मतलब 5600 कहाँ से आ गया। नहीं नहीं, एक बार ओके, सम ऑफ यू हैव बीन एबल टू गेट द आंसर राइट। ऑब्जर्व, ठीक है, आप लोग छोटी छोटी चीजों में स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक्स करते हो, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना कैसे करना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू contribution in molecular weight upon molecular weight into 100%। ठीक है, अब जो आपको निकालना है उसको आप अज्यूम कर लो। लेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड बी एक्स। ठीक है, तो ये कोई तो कंपाउंड होगा ए बी सी डी समथिंग समथिंग, और उसमें नाइट्रोजन के एक्स एटम्स है। ठीक है, बाकी और भी एलिमेंट्स होंगे, हमें नहीं पता, उनके बारे में चाहिए भी नहीं नॉलेज, बट एक्स नाइट्रोजन के एटम्स है। तो कंट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया नाइट्रोजन का, 14 इंटू एक्स। ठीक है, एक नाइट्रोजन एक्स देगा, सॉरी 14 का कंट्रीब्यूशन करेगा, सो एक्स एटम्स है, तो 14 इंटू एक्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 168। ठीक है, so this into 100% is given to you as 100 by 3%। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x का आंसर 4 आ जाएगा, राइट। सो जिसका आंसर मैच नहीं करा, आप प्लीज नोटिस करना कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। ठीक है, apart from just knowing what the correct answer is, correct solution is, it is very important to notice the kind of mistakes that you have done and learn from those mistakes। ठीक है, so that is something which is pretty important here। Okay, now let me take one more question। ठीक है, all right, so एक और एग्जांपल ट्राई करो। ठीक है, ये थोड़ा सा और ट्रिकी है। A certain compound contains 3.2% सल्फर। ठीक है, 3.2% सल्फर बाय मास। डिटरमाइन द मिनिमम molecular weight of this compound।
डिटरमाइन द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अच्छा इसमें मेरा आपके लिए एक हिंट रहेगा। ठीक है, यू माइट से कि सर आपने तो बोला था कि 3 डेटा पॉइंट है, 3 डेटा पॉइंट में से हमें 2 मिलेंगे और एक सॉल्व करना रहेगा, तो सीधे सीधे फॉर्मूला में डाल देंगे आंसर आ जाएगा। वेल ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन अब उसके हिसाब से। तो इसमें अगर आपको कुछ अज्यूम करना पड़ रहा है अपनी तरफ से, यू हैव टू अज्यूम सम वेरिएबल, लेट समथिंग बी एक्स समथिंग बी वाई, तो आप ले लो एंड देन लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। ठीक है, all right, a lot of you have been able to kind of get the question right. ठीक है, I am getting a correct answer from a lot of students, yes. All right, so यहाँ पर कैसा रहेगा नोटिस करना, let the molecule have x atoms of sulfur। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, this implies percentage of sulfur will be 16 into x, ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सल्फर का, अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100%। एंड ये आपको दिया हुआ है 3 पॉइंट, सॉरी नॉट 16, माय बैड, 32, सल्फर का 32, एंड ये आपको दिया हुआ है 3.2%। इससे अब आप सॉल्व करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट का आंसर आ जाएगा 1000x। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 AMU, और यू कैन से 1000 ग्राम पर मोल। वाई, बिकॉज x का मिनिमम वैल्यू 1 होगा ना। ठीक है, x is something that will have a minimum value of 1। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया है, कम से कम एक एटम तो होना चाहिए सल्फर का। ओके ग्रेट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा इसमें। Na2SO4.XH2O is found to lose 56%। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं बट अराउंड। ठीक है, फाउंड टू लूज अराउंड 56% of mass upon heating। ठीक है, डिटरमाइन x। ठीक है, एंड अगर इंटीजर नहीं आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर देना, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर।
All right, so 10 is the correct answer. Right, I have got the answer from most of the students. 10 is, yeah, the right answer. Great. So good that you are able to understand this. इसमें आप थोड़ा सा common sense क्या लग रहा है? The common sense is that loss of mass upon heating is because of loss of water. ठीक है, loss of mass upon heating is due to loss of water. So this implies percentage by mass of H2O is 56%. अब percentage by mass कैसे लिखेंगे? Contribution of H2O in molecular weight upon molecular weight into 100% is 56%, right? एंड आप फॉर्मूला देखोगे Na2SO4.XH2O तो आपको समझ में आ जाएगा. ये x टाइम्स 18 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखोगे 2 टाइम्स 23 प्लस 1 टाइम्स 32 प्लस 4 टाइम्स 16 प्लस 18 टाइम्स x इंटू 100% इज इक्वल टू 56%. इससे आप सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू ऑलमोस्ट 10 के पास आ जाएगा. ठीक है. So I hope this is something which is abundantly clear to the students. ठीक है. All right. So ये हमारे कुछ questions थे which were based on the concept of percentage composition. ठीक है. अब इसके ऊपर कुछ questions और रहेंगे आपके पास में. मैं होमवर्क में डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग करोगे. अब मैं एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ बिफोर वी मूव टुवर्ड्स क्लोजिंग टुडेज लेक्चर. ठीक है. सो ध्यान से ऑब्जर्व करना. वैसे एक्चुअली हमारे लेक्चर का टाइमिंग कितनी बजे तक का था? आई होप 2 बजे तक था ना. आई डोंट थिंक 1:30 तक था. Oh, it was till 1:30 only. My bad. Okay. ठीक है. Then maybe I have overshot this time. So ठीक है. Then let me take the next concept in the next lecture itself. Don't worry about that. And अब आपको क्या करना है as a preparation for the next lecture, वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा. ठीक है. It will come on the WhatsApp group. So it will be based on what I have done in the 3 different batches that were there today. And also जो आपको होमवर्क पहले दिया गया था उसके I will upload the solutions. ठीक है. Homework I'll give on the group, the WhatsApp group that is there. So don't worry about it. And right now you don't need to get on to extra books. अभी आप लोग बुकलेट के ऊपर वर्क कर लो तो it is more than sufficient. आपको कब बुक्स करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको अप्रोप्रिएट टाइम पर बता दूंगा. ठीक है. Yes, everything I'll inform. What lectures to watch, what questions to do, ये सब मैं आपको बता दूंगा. आज का जो ये लेक्चर हुआ है इसके क्लास के नोट्स का पीडीएफ भी आपके साथ शेयर हो जाएगा. आज का जो ये सेशन हुआ है इसका जूम का रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा. So you don't worry about all of that. That will come to you automatically. Okay. Till then, see you guys. Then we'll meet on the next class, which is on Saturday. Yeah. Okay. Take care. Thank you, guys.